There seems to be no end to the agony of Kulbhushan Jadhav, a former officer of Indian Navy who is in jail in Pakistan and is facing the death sentence. For years his case has got embroiled in technical and procedural issues, thus prolonging the torment. The latest turn in the case is the question whether Islamabad High Court has the jurisdiction to hear his case in the context of implementation of the verdict of the International Court of Justice delivered 2 years back. In the agenda today, we will try to understand what is making the issue so complicated. We have with us retired diplomat Ambassador Sudhir Devre, and from Pakistan we are joined by journalist Zamir Ali Dahto. But before we start our conversation, have a look at this small report. Pakistan's Islamabad High Court has said India has some misunderstanding about the court's jurisdiction to hear the Kulbhushan Jadhav case regarding implementation of the verdict of the International Court of Justice, and that the country's foreign ministry should clear it. Jadhav, the 50-year-old retired Indian Navy officer, was sentenced to death by a Pakistani military court on charges of espionage and terrorism in April 2017. India has been saying that Jadhav is innocent and had not indulged in any illegal activity in Pakistan. India says Jadhav turned businessman after retirement from the Navy and was kidnapped by Pakistani intelligence agencies from the Iran border during one of business trips. India has said it was not even provided proper consular access to Jadhav by Pakistan. After its appeal for fair trial and repatriation of Jadhav failed, India approached the International Court of Justice challenging the death sentence. The Hague-based ICJ ruled in July 2009 that Pakistan must undertake an effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Jadhav, and also to grant consular access to India without further delay. The ICJ in its 2019 verdict had asked Pakistan to provide a proper forum for appeal against the sentence given to Jadhav by military court. Subsequently, the Pakistani government issued a special ordinance last year and filed the case with the Islamabad High Court. The court then appointed a defense counsel for Jadhav. However, India has been insisting that the defense lawyer should be an Indian appointed by the government of India. Pakistan has not been accepting this, thus creating hurdles in the fair process of trial and justice to Jadhav. Bureau Report. Now let's start our discussion. We have Ambassador Sudhir Devre and Zamir, a journalist from Pakistan, with us. Welcome to both of you to the program. So I'll again begin with Zamir. About ये Islamabad में जो Islamabad High Court, whatever it said yesterday, that there is some misunderstanding about Kulbhushan Jadhav case in India, and it should be clarified. Why did it say so? Why did the High Court say so? What is the confusion? Zamir. देखिए इसके ना दो पहलू हैं। अगर आप देखें इस केस को बारीकी से, तो पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के हवाले से जिस इल्जाम से केस चलाए जा रहे हैं, वो इल्जाम उन पर ये है कि वो पाकिस्तान में जासूसी की नीयत से आया था और बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। और उसके साथ साथ उसको ये भी कहा है कि इंडियन नेवी टीम का एक हादस सर्विस अफसर है। उसके साथ साथ उसी तरह से आर्मी अदालत की जाने से जो फैसला दिया गया था, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनके लिए किसी ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसके बाद उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उससे लाए। उससे पहले पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी भी ऐसी सेक्स का केस हाई कोर्ट में चलाया गया जिसके ऊपर मुल्क में जासूसी करने या गद्दारी के हवाले से कोई इल्जाम हो। तो इस हवाले से कुलभूषण जाधव के हवाले से जो आर्मी अदालत के फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस चल रहा है, उसके मतलब चीजें ऐसी हैं जहाँ पर जाकर या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या फिर इंडियन हाई कमीशन को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये केस पेंडिंग का शिकार हो जाता है। अब इस वक्त भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट के अंदर ये जाने वाला ट्रायल होता है, उसके तहत जो चीजें यहाँ पे सरकार होती है, उसमें काफी उभार मौजूद है, काफी मसाइल इस वक्त भी मौजूद है कि इस केस को किस तरह से चलाया जाएगा। अब पाकिस्तान की जानिब से जो लॉयर्स फराम किए गए थे इंडियन हाई कमीशन को, उसमें से या तो कुछ लोग ये केस लड़ने से इंकार करते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंडियन हाई कमीशन की जानिब से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा।
वही बात इंडियन हाई कमीशन की जानिब से इंडियन हाई कमीशन जब ये अवसर करता है कि वो अपना कोई लॉयर इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको देखा जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो लाज है वो इसको अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, वो किस तरह से ऐसा एक केस को लेकर देखते हैं कि हाई कोर्ट एक ऐसी बॉडी है जिसको लाजमी तौर पर जो कानून का दायरा है उससे रहते नहीं या फिर उसको फैसला देना है बल्कि इसकी जो हेयरिंग करनी है वो भी उस कानून के दायरे में रहते हुए करनी है। तो ये एक अलग मिसाल है जिसमें एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर जासूसी का इल्जाम है, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो मुल्क मुलविस था, तो उसके तहत चलने वाला केस है वो फौजी अदालतों में चलता रहा है, कोर्ट मार्शल होता रहा है, जैसे फौजी अदालतों से तमाम जो मुलजमान से उनको सजाएं दी गई है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इसके मुताबिक पहली जो वो उसके सामने जिसके तहत ये केस है इसके चलने में मुश्किलात का सामना है। काम आपको ये देखना है कि इंडियन हाई कमीशन और पाकिस्तान गुजरात के खाते की जानिब से इसके हवाले से क्या तरीके निकाले जाते हैं ताकि हाई कोर्ट में ये केस है वो अपने मुंबई की नियामत की तरफ से हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगी। बट मेरा सवाल ये है कि अगर भारत कह रहा है कि हमको कंसुलर एक्सेस चाहिए, हम अपना वकील अपॉइंट करेंगे, तो इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं इसको? जमीर देखिए, आपको सारे केस के पक्षों से अगर आप देखें तो आपको हकायक देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात है वो किस तरीके से है, और उसके साथ साथ अगर आप इसको पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो उसके ना सिर्फ कानूनी बल्कि जो अवामी दबाव है वो भी इस सिलसिले के ऊपर मौजूद है। जिस तरह आपने देखा था कि पिछले दिनों PSC ने अनाउंस किया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान से बाल होने से ही कम से कम शुगर और कॉटन के हवाले से वहाँ से हम मंगवाएंगे कशिया, तो उसके ऊपर जो वजह से जो के प्राइम मिनिस्टर के अंदर है उन्होंने उसकी परमिशन दे दी, उसके साथ साथ वफाक काबिना ने उसको डेफर कर दिया, उसको जो है वो उन्होंने मुस्तरद नहीं किया, कहा उसको जो पेंडिंग कर दिया है। तो इसलिए अवामी दबाव का भी सामने कानूनी कानून को भी देखना पड़ेगा। तो मुझे जो बजाय केस का सारा कुछ जो लगता है उसको लेकिन इंडियन हाई कमीशन को 3 बार पाकिस्तान दे चुका है, जिसमें इंडियन हाई कमीशन की जानिब से जो मुकाबला किया जाता है कि उनको एक सेपरेट की मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो इस तरह की होती है जिससे इंडियन हाई कमीशन अगर कोई बहुत से आदेश है उनका कोई कौंसल मिलती भी है तो उसके अपने जो कौंसल है वो पूरे नहीं होते। तो इस वक्त कुलभूषण जाधव का जो केस है वो यकीनी तौर पर काफी मुश्किल केस है। इसमें से इंडियन हाई कमीशन कभी भी इस सारे सिनेरियो में ऐसे कंफर्टेबल सिचुएशन फील करेगा नहीं, जबकि पाकिस्तान जो है उसको कभी भी इस परमिशन नहीं दे सकता कि इंडियन हाई कमीशन एक कंफर्टेबल लेवल पे अपनी जो मामलात है उसको मंतक इंजाम तक पहुँचाने के हवाले से इल्जाम कर सके। तो मेरी नजर में ये कानून से ज्यादा सिफारशी के ही इसके मद्देनजर रखने पड़ेंगे कि इंडियन हाई कमीशन ने किस तरह अपनी काउंसिल के साथ साथ जो अपना वकील अपॉइंट करवाने की कोशिश कर रही है तो इससे कामयाब होगा या फिर पाकिस्तान उसको किस तरह की परमिशन देता है इसके कानूनी और सिफारशी दोनों पहलुओं के दरमियान में से इसको रास्ता निकालना पड़ेगा। हम हाल ही में हमने देखा था कि आर्मी चीफ को जो समझ बादशाह का जो बयान था वो काफी पहुंचाएंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि माजी को बुलाकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसके बाद हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मामलों में अब पेशरफ भी होती हुई दिखाई दे रही है। जी सो एम्बेसडर जी मैं आपके पास आई एम अनेबल टू हियर मिस्टर जमीर एट ऑल। आपसे सिर्फ सुनाई दे रहा है मुझे। आई एम नॉट एबल टू हियर मिस्टर जमीर। Zamir was giving a detailed overview how, I mean, there is the crux of the story is what he wants to say is there is a lot of pressure on the government of Pakistan because of which वहाँ पे local जो pressure है domestic pressure है, because of that Pakistan government is not able to maybe act or give mercy to him, and he also cited recent example of जो cotton decision was taken by I mean to import cotton and sugar from India, but that was also again revoked and reviewed. And now he also talked about General Bajwa's recent statement that we should bury the past and move ahead. So basically he is giving an overview of the relations in the context of Jadhav case. So how do you see this Jadhav case? Is it legal or is it political or diplomatic? Well, it is both diplomatic as well as political.
द डिसीजन ऑफ द आईसीजे ये बहुत क्लियर है, इट इज अनइक्विवोकल डिसीजन। राइट। और उन्होंने कहा था कि इसमें बेसिक जो कोर इश्यूज है, वो कोर इश्यूज पाकिस्तान अभी तक हैंडल करने को तैयार ही नहीं है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि उसमें उन्होंने कहा था कि अनइम्पीडेड अनहिंडर्ड एक्सेस देना चाहिए, काउंसुलर एक्सेस। राइट। जो 36 वियना कन्वेंशन है उसके मुताबिक किसी भी आदमी को जब ऐसे पकड़ते हैं तो एक्सेस देना पड़ता है। तो पाकिस्तान ने पहले हमको बताया भी नहीं, बाद में कितने समय मांगा तो भी एक्सेस दिया नहीं। फाइनली जब इंडिया टुक अप द मैटर विद आईसीजे और आईसीजे ने बताया कि एक्सेस तो देना ही पड़ेगा आपको, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो केस में रिव्यू होना चाहिए और रिकंसिडरेशन होना चाहिए और सेंटेंस वगैरह का। अब ये 219 में ये डिसीजन आईसीजे ने दिया था। अभी तक पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन, इफेक्टिव एक्शन ली नहीं है और ये मामला ऐसे ही जा रहा है इसमें। तो ये पाकिस्तान को समझ के अब अगर वो ये संबंध हमारे साथ सुधारना चाहते हैं तो इसका पूरा सोल्यूशन निकालने के लिए ये बेसिक एक्शन जरूरी है। तो ये पाकिस्तान के आगे बात बढ़ेगी। बट इसमें जरा साहब मैं आई पॉइंट आउट टू इश्यूज, जो दो एस्पेक्ट्स है इसमें। कुलभूषण जाधव को मिलिट्री कोर्ट ने दिया है, सिविलियन कोर्ट ने जस्ट वो सेंटेंस नहीं किया है। द ट्रायल वाज हेल्ड इन द मिलिट्री कोर्ट विच वाज हेल्ड इन अ वेरी ओपेक सिस्टम, ओपेक मैनर। एक वो एस्पेक्ट है। दूसरा जो कंसुलर एक्सेस की बात की है, कंसुलर एक्सेस तो दिया गया था इंडिया को, या उनकी माँ भी गई थी, बट उसमें वहाँ पे उनके जो लोग ऑफिशियल्स या पुलिस ऑफिशियल्स या जो भी जेल ऑफिशियल्स वहाँ पे खड़े थे। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ गिविंग कंसुलर एक्सेस। सो ये दो एस्पेक्ट पे क्या बोलते हैं आप? हाँ, एक तो मिलिट्री कोर्ट ने जो दिया था दैट इज नॉट लीगल, so that is not acceptable. And secondly, जो काउंसलर एक्सेस दिया उसमें हमारे जब ऑफिसर गए थे उनके साथ पाकिस्तानी भी बैठे थे। ऐसे ये काउंसलर एक्सेस नहीं होता है। काउंसलर एक्सेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी इसका इट वाज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट काउंसलर एक्सेस। तो फिर ये दोनों चीजों में तो आप एम्बेसडर साहब, आप डिप्लोमेट रहे हैं तो एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए काउंसलर एक्सेस में क्या होता है। काउंसलर एक्सेस में हमारा आदमी जाएगा, एम्बेसी का ऑफिसर जाएगा, वो उसको अंदर जाने देंगे। वो वहाँ उसके कमरे में जो एक्यूज है उसके कमरे में जाके वहाँ बैठेगा, उससे बात करेगा और ताकि उसको क्या चाहिए, क्या उसका प्रॉब्लम में क्या है, पूरा यानी प्राइवेसी में बात करेंगे। क्या प्राइवेसी में को ही इज द नेशनल ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो उसको ये अधिकार है कि अपने देश के जो प्रतिनिधि है एम्बेसी के, उनके साथ खुलाम खुला बात करें। तो दैट इज काउंसलर एक्सेस। तो वो काउंसलर एक्सेस जब तक नहीं होता है तो वो जो आरोपी है वो तो प्राइवेसी में बात ही कर नहीं पाता ना, राइट। तो इसीलिए काउंसलर एक्सेस की बहुत गरिमा है और ये बेसिस है ये वियना कन्वेंशन का, राइट। सो जमीर साहब, आपके पास आता हूं मैं। जैसे एम्बेसडर साहब ने समझाया अभी कि काउंसलर एक्सेस में क्या होना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी भी यहाँ पे पकड़ा जाता है तो उसको काउंसलर एक्सेस दिया जाता है। उनके पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिशियल जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जाधव केस में जैसे इंडियन ऑफिशियल्स गए, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल भी खड़े थे, तो उनके सामने जाधव खुल के बोल नहीं पाएगा ना, कुछ है कि नहीं? देखिए, मैं की बात सुन रहा था, ये मजा पर मारे, लेकिन उससे पहले जिसमें हमने वाकया देखे हैं या दूसरे की तरह के ध्यान नहीं है, उसमें कुछ चीजें मोकल होते हैं इस केस के। पहली बात तो ये कि कुलभूषण जाधव को जिस इल्जाम के तहत सजा दी गई है वो है मुल्क से जासूसी के तहत। अब आपके जो पहले लोग पकड़े जाते थे पाकिस्तान के इंडिया में या फिर इंडिया के जो पाकिस्तान में, उनके ऊपर इतने संगीन एलिगेशन नहीं थे जितने के कुलभूषण जाधव के ऊपर है। और उसके साथ साथ दूसरा इसका पहलू है तो ये है कि कुलभूषण जाधव जो है वो इंडियन नेवी चीफ का एक आदेशन था। ऐसे तमाम तर तनाजुर में पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसको काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है। पहला पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है वो है अवामी परेशान। उसके साथ साथ जो लीगल पॉइंट है तो उसके
इसके अलावा मतलब ऐसी चीजें होती है जिसके तहत से दरमियान में रहते हुए इनको ये परमिशन दे दी होती है। तो इंडियन हाई कमीशन की जानिब से दरख्वास्त की गई थी, खासतौर पर जो इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला था उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ये परमिशन दी गई है कॉन्सुलर एक्सेस की। लेकिन कॉन्सुलर एक्सेस के दौरान सिक्योरिटी पर्पज की बुनियाद पर मुतअद्दिद ऐसी इंतजाम किए जाते हैं जिन इंतजाम को इंडियन हाई कमीशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर इस वक्त जो सूरत में बजाय नजर आ रही है वो लीगल से ज्यादा जो डिप्लोमेटिक एक सूरत है उसकी नजर आ रही है। अब इंडियन हाई कमीशन किस तरह पाकिस्तानी निजाम से डील करता है या पाकिस्तानी निजाम किस तरह इंडियन हाई कमीशन को मुस्तैद कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मुकदम कैंडिडेट है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कुलभूषण जाधव के ऊपर जितने बड़े इल्जामात है उसी हिसाब से उनकी सिक्योरिटी के भी मसाइल होंगे, उनके लाइफ के भी मसाइल होंगे। अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कस्टडी में जितना बड़ा ये केस है और इस वक्त कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की कस्टडी में तो इसकी तमाम मामलात की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के ऊपर है। तो पाकिस्तान इन तमाम पर जी जमीर साहब मैं आप सो वी वर टॉकिंग अबाउट टू जमीर फ्रॉम पाकिस्तान, इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। जमीर साहब, एज इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कॉन्सुलर एक्सेस की, जैसे आपने बोला कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया, भारतीय ऑफिशियल्स आए एंड ऑल दैट, बट जो वियना का कन्वेंशन है, कन्वेंशन के हिसाब से जो नॉर्म्स है, जो प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया। तो जैसे इंडियन भारत सरकार कह रही है कि जब ऑफिशियल वहाँ गए भी तो वहाँ एक इंटिमिडेटिंग जो डराव का माहौल था, डर का माहौल था उसके ऊपर। तो उस माहौल में अगर कोई एक्यूज्ड है वो खुल के कैसे बात बोलेगा कि वो इनोसेंट है या नहीं है, उसने किया कुछ किया नहीं किया? आप बताइए इस पे क्या करें। देखिए, वियना कन्वेंशन की भी अगर हम बात करें तो देखिए आप इस बात की समझ होगी कि मैं तो बड़ा खुद से बात करता हूँ, तो जमात रानी की बजाय टीवी की बात करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान अपने नजरियात के तहत और अपने जो पर्पज है उसके तहत से उसकी दोनों को तस्वीर करता है, इंडिया अपने तहत करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह इंडियन ऑफिशियल्स वहाँ जब जाते हैं तो वो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है कि वो नॉन कम्फर्टेबल माहौल में बात कर सके या कुलभूषण जाधव से इस तरह की कोई मुलाकात हो जिसमें कम्फर्टेबली अपनी तमाम पर जो बातें हैं आपको जो मुखातिब है उसको खुलकर बात कर सके। इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान जो है वो कुलभूषण जाधव के हवाले से उनको कौंसल वियना कन्वेंशन के तहत वो पाबंद है और उसके साथ साथ जो आली अदालत का फैसला है उसका भी पाबंद है। लेकिन इस तमाम पर सूरत हाल में कुलभूषण जाधव क्योंकि तो पाकिस्तान की कस्टडी में है तो वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है। तो उसके तहत से सिक्योरिटी और दीगर तमाम पर मामला को देखे बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को ऐसी कौंसल एक्सेस दे जिसके तहत से किसी भी सूरत कोई अनकंफर्टेबल सूरत का सामना करना पड़ सकता हो। जिस तरह कुलभूषण जाधव के ऊपर उतने बड़े इल्जाम है उसी तरह से अगर आप इसको दूसरा एंगल देखें तो भारत के लिए उतना ही अहम भी है। यकीनी तौर पर भारत अपनी तौर पर कोशिश कर रहा है इसके हवाले से। जी, आपने इल्जाम जमीर भाई आपने इल्जामात की बात की तो मैं एम्बेसडर साहब से पूछूंगा। एम्बेसडर, एज यू हर्ड दैट ही सेज दैट देयर आर सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट, आप बताइए। he says there are serious allegations against Jadhav and consular access has been granted, but the point is, as I mentioned to him also, that it was not granted in the proper manner as mandated by the Vienna Convention. So, and he also says that it is more of a diplomatic rather than legal case. So, if it is a diplomatic case, then how it should be resolved? No, it is not just diplomatic case. It is a legal case. It is under the jurisdiction of ICJ. I mean, ICJ has gone into this. ICJ has directed that there should be legal access. There should be unhindered access. They have talked about consular access at great length, and the sanctity of that consular access we fully respect, and we do not want that to be diluted at all. I mean, there is no consular access. How can you really pin down a person? He has to confide with his own government and tell them what happened, and that is not available to him. And secondly, also, ICJ had also said that there should be review and reconsideration. Now, both these aspects are legal access aspects. Right. Both the consular access as well as the decision of the ICJ. Now, Pakistan has to go by that. Pakistan
also that ICJ when this case was discussed. So as per the international norms, is the military court or is a military court the right platform or the forum where as such a person should be tried? No, that's why we went to ICJ. Yeah. We don't accept that. But at the same time, India is saying that there should be no, I mean, he should be given, Jadhav himself is saying that his mercy petition should be considered rather than his fighting the legal case. Perhaps he thinks there will be nothing will come out of the legal case. So he wants mercy petition to be worked on. And well, that may be the point made by him. Yeah. But the point which government of India is making is this: is the two things which we discussed. But do you the consular access and the review and reconsideration? But Ambassador Saab, practically, given the bitterness in relations between India and Pakistan, do you think that Pakistan will do that? Is that possible? As a member of the international community, I think Pakistan is really enjoying to do so. No, it is enjoying, but will it do it? Because consider the bitterness in ties. Well, what is your view? What is your assessment? I think in international cases like this, Pakistan hopefully will abide by decisions of the international bodies, including the International Court of Justice. They should. Okay, so जमीर साहब ये आपने सुन लिया कि पाकिस्तान को एज ए जो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन अगर है पाकिस्तान, तो उनको जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उनको फुलफिल करना पड़ेगा, वो करना ही चाहिए. तो आपको लगता है कि पाकिस्तान करेगा ऐसा? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को यकीनी तौर पर भी ये मौका होगा कि उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉज है या इंटरनेशनल जो एक मेजर्स है उसके तहत ही जो 3 बार अफाई दी है कुलभूषण जाधव के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस दी गई है, वो 3 बार जो दी गई है उसमें उन्होंने तमाम पर कानूनी पहलू और इखलाकी पहलू अपने सफारतकारी से उसको उन्हीं के खाते रखा होगा. और यकीन तौर पर आपको पता है कि जो सफारती कम्युनिटी होती है उसके अलग से कुछ नाउन होते हैं, कुछ अलग से इनके एटिकेट्स होते हैं, तो उसके तहत वो सारा लिंक करते हैं. अब इंडियन हाई कमीशन जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, उनका जो मौक़िफ़ है वहाँ यकीन तौर पर यही होगा कि हमें प्रॉपर रसाई नहीं दी गई. लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और खासतौर पर डॉक्टर साजिद की जानिब से जो मौक़िफ़ लिया जाएगा इससे वो यही होगा कि हमने कुलभूषण जाधव को पूरी तरह से वो तमाम पर जो अखलाकी तकाज़े हैं उनको पूरा करते हुए रसाई दी है. अगर अब सिचुएशन यहाँ पर जो आ रही है तो ये आ रही है कि अब इंडियन गवर्नमेंट किस तरह सेटिस्फाई होगी या फिर इंडियन गवर्नमेंट से जो है वो पाकिस्तान को किस तरह सेटिस्फाई कर सकती है कि ये चीजें हमने जो वायदी थी तो नहीं दी गई. यकीनी तौर पर इसमें ये सलाह हमेशा से रहेगा कि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाएगा कि हमने तमाम पर जो कानूनी तकाज़े और जो इखलाकी तकाज़े हैं वो पूरे किए, और इंडियन हाई कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ रहेगा ऐसे पाकिस्तान ने तकाज़े पूरे नहीं किए. अब अदालत से इसको डिसाइड करेगी कि दिलाकर इसका क्या फैसला होता है. क्योंकि कुलभूषण जाधव को जो सजा दी गई है वो पाकिस्तान जमीर साहब एक ऐसा ही केस था सरबजीत सिंह का भी, उसमें भी ऐसे गोलमोल करके एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, फिर मर्सी पिटीशन पड़ी रही और सालों साल फिर तो उनको मारा ही गया जेल में. तो यहाँ पे एक अंदेशा है कि कुलभूषण जाधव के साथ भी ऐसा ना हो कि वो लीगल केसेस में बने रहे और फिर उनकी वहाँ पे जान ली जाए. आप कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान में इस बात के लिए कोई इनकार नहीं है कि कुलभूषण जाधव की जान से कोई खतरा हो. ऐसी तो मैंने पहले कहा कि जितना बड़ा ये केस है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं कुलभूषण जाधव के हवाले से. मैं आपको गरीबी से कहता हूँ कि पाकिस्तान में दीगर जो केसेज होते हैं या जो दीगर मुलजमान होते हैं उनमें कुलभूषण जाधव के केस में जितना बड़ा फर्क है उतनी सिक्योरिटी मेजर्स में भी इनके फर्क होगा. क्योंकि ये तो बुनियाद है कि कुलभूषण जाधव को किसी भी सूरत में अगर सजा दी जाती है तो वो थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ दी जाएगी. उसके हवाले से बाकी कोई सच्चा मौजूद नहीं क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है पाकिस्तान में. बट सरबजीत तो मारे गए ना, वो भी तो कस्टडी में थे, जेल में ही मारा गया उनको.
देखिए इस केस में और इस केस में बहुत फर्क है। उस वक्त तो इतना प्रेशर नहीं था, नहीं आलमी अदालत का फैसला था, नहीं दीगर पहलू थे इस केस में। लेकिन तौर पर ना सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि गोवेदा पाकिस्तान के लिए भी काफी मसाइल है कि वो कुलभूषण जाधव की जो सिक्योरिटी उसको निजी नहीं बनाया। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो लोगों का ख्याल में नजर आ रही है उसमें कोई भी गवर्नमेंट से उसके किसी किस्म की कोताही की मुकम्मल हो नहीं सकती। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात है, उन ताल्लुकात को यकीनी तौर पर दोनों पाकिस्तान के नजर में भी होगा कि इन ताल्लुकात के खराबी में कितनी कोई सिक्योरिटी जरूरी होगी तो दूसरे जागरूक करवाने के लिए। ठीक है, तो अभी बिफोर आई क्लोज, एम्बेसडर देवरा, आई कम टू यू. I'm not sure whether you heard what Zamir said, but basically I was asking about security. He says Sarabjit case, in this Sarabjit case there was not so much of pressure, maybe the international scrutiny as is on Jadhav case, so perhaps he will be secure, there will be no threat to his life, he will be safer. But I want to ask you, do you think he will ever get justice? Before I conclude, Well, we will keep trying. We must try. And fortunately, ICJ also has, given a decision which is putting pressure on Pakistan. So let us hope we can do that. But to say that in Sarabjit's case there was not adequate security, it reflects on the situation in Pakistan itself. I mean, just because he was not, in the same kind of visible situation, he died in the jail. That itself was quite bad, and therefore I hope there is no such fear or no threat to Kulbhushan Jadhav's security. right? So we hope that Kulbhushan will be safe and finally he will get justice at the earliest possible. But the program time is over. Thank you both of you for participating in this debate. This is all in the agenda today. Thanks for watching. I will be back with another important topic tomorrow. Till then, goodbye.